Feel like sharing with you the science of spirituality with you today. What is science? Something which can be understood, which can be talked about. Spirituality cannot be completely understood. It's an experience. But to a great extent, yeah, it is scientific. But to an extremely great extent, it is not understandable. Because after understanding now comes an experience. Understanding is the faculty of the intellect, of the mind. Beyond that is the spirit. To a great extent, it can be understood. Yes, even greater extent than. कुछ नहीं पता कैसे कुछ हो जाता है. जब कुछ हो जाता है तो बस हो जाता है. एग्जैक्टली लाइक लव. प्रेम को समझाया नहीं जा सकता. प्रेम के ऊपर कोई लेक्चर्स नहीं दिए जा सकते. प्रेम को किसी पे फोर्स नहीं किया जा सकता. अगर हो जाए तो हो जाता है. फिर अपने आप को रोका भी नहीं जा सकता. बिकॉज इट्स ए चेन रिएक्शन. कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकते प्रेम के बीच. होल वर्ल्ड में स्टैंड इन बिटवीन बट यू वुड से नो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. इट्स then now becomes spiritual because it cannot be understood. Love cannot be understood. God is love. So this Yog Darshan, this book called Yog Darshan, is a lot of science, can be understood. But when something starts happening, then it goes beyond understanding. Hare Ram. So the science of spirituality tells you as much as it can be understood. Yog Darshan, the very book. I by nature, I was told by Swami Vivekananda that every human being is made up of three faculties. So whatever I'm telling you is science after all. We are made of emotions, we are made up of intellect, and we are made up of will to do things, to move mountains, to do this, that, various things in life. So I asked myself, who am I? I am essentially a bhakt. That means essentially an emotional, very sensitive man. And actually, most of us are. But that doesn't mean that we are not intellectual. We are intellectual also, and we want to do things in life also. So, but dominant aspect of me is love. And that's what most of us are, but maybe it's sleeping. That's different. Most of us are very, want love and we want to love and we want to be loved. Most of us. So, when I opened this book in the beginning, this is called Yog Darshan, Patanjali Yog Darshan. I bought this, but I'm talking of when I was 30. I bought this, but I was refusing to go much into it because it was very intellectual. I wanted to keep it away. I did not want now intellectual bahut ho gaya. Because after MBBS and MS and then super specialty, I had used a lot of my intellect and I was tired now. So I wanted to enjoy love. I wanted to enjoy bhakti. काम बहुत हो गए जिंदगी में, सीख भी बहुत कुछ लिया है, अभी मुझे प्रेम चाहिए. तो मैं इसको थोड़ा दूर ही रखता था कि कहीं ये मेरी भक्ति को ना डाइल्यूट कर दे, ये अंडरस्टैंडिंग वेल बट धीरे धीरे पढ़ता भी रहता था, फिर दूर कर देता था. Just like, Vivekananda and Sri Ramakrishna Paramahansa are two opposites. They belong to each other completely. Ramakrishna Paramahansa is his guru, but he is a fiery man. And Ramakrishna is intoxicated in bhakti. So I would
want to imbibe more of Sri Ramakrishna Paramahansa rather than Vivekananda. I would keep intellect away. So, well, but now I'm talking to you intellectual. So, this book is all intellect. Intellect behind happiness. How can intellectualize happiness? Can happiness be actually intellectualized? Not really, but to some extent, yes. Can happiness be caught? After all, we all want happiness in life. We don't want God, really. We don't want Sri Krishna. We don't want Ram. We don't want Allah. We want stability. We want happiness. We want fulfillment. We don't want a particular guru. We want fulfillment. Each human being wants satisfaction, fulfillment. So, yeah, this book tells you that, you first forget who you are. That's called the beginning of suffering, the beginning of life, or beginning of creation. You forget yourself knowingly and then keep taking births, birth after birth. Keep suffering till you get tired one day and want to learn, who am I? Who am I? And who am I's subject is called Adhyatma, Adhyayan of myself. I want to know who am I. The subject is called Adhyatma. It's also called spirituality. Because you are spirit, you are not the body, neither the mind nor the intellect. So, to know who you are is the beginning of ending suffering, is the beginning of ending all suffering of life. I want to be free from suffering. So the subject is called spirituality, Adhyatma. Why? Because you yourselves have decided to forget yourself one day. One moment you decided that you want to forget yourself. It's called avidya, ajnana. Ajnana of not shlokas and shastras and mathematics and French and German. No, a gyan of your own self, who you are. The moment you forget who you are, you start suffering. And you pause it upon yourself, you dawn upon yourself illusory nature. Nature is called Prakriti. Nature, प्रकृति. आप समझते हैं पेड़ पौधे प्रकृति हैं? नहीं, आप ही अपने ऊपर एक प्रकृति का कवच डाल लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अपने आप को तो भूल चुके हैं आप. सो अभी क्या करें? फिर प्रकृति बन जाते हैं. प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण. इन तीनों गुणों में आप भ्रमित रहते हैं, आप ही. उसको बोलते हैं अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. इन पांचों को मिला के बोलते हैं क्लेश. क्लेश मीन्स बस, दूर फिटे मुंह. क्लेश मतलब आप सफरिंग ही सफरिंग, क्योंकि आपने भूला पहले अपने आप को, अविद्या. फिर अस्मिता, कवच डाल लिया प्रकृति का, तीनों गुणों का. करना ही पड़ेगा, जब अपने आप को ही भूल गए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. सृष्टि की रचना कर दी आप ही ने. आप ही ने अपनी सारी सफरिंग खुद ही बुनी. यू वोव इट अराउंड योर सेल्फ, अराउंड योर इमेजिनरी सेल्फ. सो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष. राग द्वेष, ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज नहीं अच्छी. इस चीज को, तो ये दुश्मन है मेरा, ये दोस्त. परिस्थितियां भी, ये कंड्यूसिव है, ये नॉट कंड्यूसिव. और वो कंड्यूसिव नॉन कंड्यूसिव भी लॉजिकली सोचे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी आपको गर्मी अच्छी लगती है, कभी आप सर्दी अच्छी लगती है. इज नॉट यूनिफॉर्म. सो नथिंग इज यूनिफॉर्म बिकॉज यू योरसेल्व्स आर नॉट यूनिफॉर्म. You are an illusory self.
सो राग द्वेष अभिनिवेश, और फिर डर लगना शुरू होता है सारा दिन। उस डर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो डर किस बात का है, पता नहीं किस बात का है, मगर मृत्यु का भी तो बहुत बड़ा डर है। मृत्यु ऑफ हुम, किसकी डेथ? इल्यूजन की। उसी से डर लगता है कि इल्यूजन कहीं मर ना जाए। है ही इल्यूजन, तो इल्यूजन तो मरेगी कभी, मगर डर लगा रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे राम, बहुत भयानक चीज है मरना। सो ये क्लेश। तो ये इसको टाइम पास कैसे करते हैं फिर आप क्रिएशन में? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ आप टाइम पास करते हैं सारा दिन, कुछ ना कुछ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। हर वक्त कोई ना कोई लॉजिक ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई इमेजिनेशन करते रहते हैं, फिर थक के सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वो वहीं से शुरू कर देते हैं। सो इसको चित्त वृत्तियां बोलते हैं। आपकी वृत्तियां जब प्रकृति बन गए तो कुछ ना कुछ टेंडेंसीज तो बनेंगी। प्रकृति भी तो आप खुद ही अपनी मर्जी से बन गए थे, अपने ही स्वरूप को भूल के स्वभाव बन गए। अपने ही स्वरूप को भूल के स्वभाव बन गए। अभी स्वभाव को अगर से उठ जाएंगे तो अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। मगर क्यों होंगे, कब होंगे? जब आप थक चुके होंगे सफरिंग से। So let's say I was at 30, what happened to me? I got absolutely tired. हाथ खड़े हो गए कि मैं नहीं सफर कर सकता और बस रहाओ, बस स्टॉप। आई कैन नॉट बियर एनी मोर सफरिंग। खून के आंसू बहने शुरू हो गए हैं, अभी तो मैं और नहीं सह सकता। सो आई सेड, कोई तरीका बताए। यस, स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? नो योर सेल्फ, अध्यात्म, अपने आप को जान लो। क्यों जानना? क्योंकि मैं अब और नहीं सह सकता, अविद्या को, अज्ञान को और नहीं सह सकता। सो मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। दोनों आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो इस किताब को कोशिश तो की परे कर दूं, नहीं पढ़ूंगा, मगर नहीं, नॉलेज भी चाहिए। मीराबाई को गुरु रविदास भी चाहिए। खाली कृष्ण से बात नहीं बनी मीराबाई की। मीरा रिक्वायर्ड गुरु रविदास ऑल्सो। गुरु रविदास इज व्हाट? बुक। गुरु भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, और पूरी नॉलेज भी चाहिए। बिना नॉलेज के प्रेम कैसे आगे बढ़ेगा? और बिना प्रेम के नॉलेज संभव नहीं है। सो इसलिए, सो दिस बुक स्टार्टेड टीचिंग मी हाउ टू वॉक फर्दर 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 ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। तो भक्ति क्या है? ईश्वर प्रणिधान, गुरुमुख हो जाना। ईश्वर प्रणिधान, अपना एक बिलवेड होना, जो सीक्रेट है, सेक्रेड है, जो आपका दिल ही जानता है। और वो बिलवेड फोर्स तो किया नहीं जा सकता। फोर्स नहीं, प्यार मैंने बोला कोई फोर्स नहीं कर सकता। प्यार तो जब हो जाता है तो हो जाता है, प्यार तो फोर्स नहीं किया जा सकता। और जब तक प्यार होता नहीं है तब तक आप ब्लॉसम नहीं कर सकते, आप खिल नहीं सकते। केवल नॉलेज से तो बात नहीं बनेगी। नॉलेज मस्ट ट्रांसलेट इनटू लव, बिकॉज नॉलेज इज डेंजरस विदाउट लव। ये पूरी दुनिया में एटम बॉम्ब्स एंड ये पूरा केओस क्यों है? बिकॉज देयर इज नॉलेज विदाउट लव। सो नॉलेज हैज टू हैव लव, एंड देन लव विल ओवरटेक नॉलेज। फिर नॉलेज वॉलेज नहीं है अभी कुछ भी, बस मुझे प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, हर घड़ी दीदार चाहिए।
सो दैट इज लव। और ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? ततः, उससे क्या होगा? ततः, संस्कृत वर्ड, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो, आपके अंदर चेतना जाग जाएगी। चेतना क्या होती है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? आई ऑलवेज से यू मस्ट नो द ऑपोजिट्स of every word to know its meaning. Not necessarily the synonyms. Know the antonym. Consciousness होती है चेतना। मैंने synonyms तो बता दिए, मगर एंटोनिम बताए बिना आपको मतलब नहीं समझ आए। आपके अंदर चेतना जाग जाएगी। तो अभी क्या है फिर एंटोनिम? आप अचेत हैं, अभी आप अनकॉन्शियस हैं, अभी आप सोए हुए। एंटोनिम्स ही तो बोल रहा हूं। अगर आपके अंदर चेतना जाग जाएगी, इसका मतलब अभी आप सोए हुए हो, अभी आप अनकॉन्शियस हो। वो कॉन्शियसनेस जाग जाएगी, चेतना जाग जाएगी। ततः प्रत्यक चेतना अधिगम हो। जब प्रेम जाग जाएगा, प्रेम ही चेतना है। जब प्यार जाग जाएगा, when you will be in love, हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। तब तो आप प्रेम में होंगे। फिर वहां पे कोई आंसू नहीं, कोई गम नहीं। फिर तो वो दूसरी ही दुनिया है। प्रेम की दुनिया दूसरी ही दुनिया है। उस दुनिया को ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, सचखंड भी बोलते हैं। पर ये फोर्स नहीं ना किया जा सकता और अंडरस्टैंड भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्पिरिचुअलिटी भी बोल देते हैं। कि सचखंड को जबरदस्ती किसी को नहीं लेके जाया जा सकता। त्रिशंकु भी नहीं जा सके, रास्ते में लटक गए, क्योंकि जबरदस्ती नहीं हो सकता। ये तो जब प्यार हो जाएगा तब पता चलेगा कि मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव। यू विल नॉट बी एबल टू से इट, बट यू विल बी इन लव। आंखों से झलकेगा प्यार। हमने देखी है उनकी आंखों की खुशबू। महकती खुशबू, हाथ से छू के, इसे रिश्तों का नाम ना दो। हाथ से छू के मीन्स हाथ से ऐसे भी छू के, मगर अपनी इंटेलेक्ट और माइंड से समझने की कोशिश मत करो, नहीं समझ आएगा। प्यार समझ नहीं आ सकता। प्यार जब हो जाता है तो इट्स ए चेन रिएक्शन, इट्स इररेसिस्टिबल अट्रैक्शन। इट कैनॉट, नो ऑब्स्टिकल्स इन बिटवीन। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराये अभावश्च। सारे ही ऑब्स्टिकल्स गिर जाएंगे, सब दीवारें गिर जाएंगी, कोई दीवार रोक ना पाएगी। ये मतलब किताब हमको ये समझा रही है। अंतराय ऑब्स्टिकल्स क्या है वो भी बताती है। ऑब्स्टिकल्स है क्या? ऐसे नाम, अगर देखिए आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुरु नहीं समझा सकता आपको कुछ भी। आपको भी कोई ना कोई टेक्स्ट बुक तो चाहिए ना। तभी तो कोई आपको फ्रेंच सिखा सकता है, जर्मन सिखा सकता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी सिखाना हो, यू विल हैव टू हैव अ बुक ऑल्सो एंड यू हैव टू रीड इट ऑल्सो, then the going to a class is of any use, otherwise it's of no use. Obstacles क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, भ्रांति दर्शन, ये सब, दुख, दौर्मनस्य, श्वास, प्रश्वास, अंगमेजयत्व, ये सब शब्द हैं, मगर आपको सब एक्सपीरियंस
होंगे जब आप थोड़ा सा सोचेंगे। कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी आपको बैक एक हो जाती है, कभी आपको नेक एक हो जाती है, कभी आपको हेड एक हो जाती है, कभी आपको डायबिटीज तंग करती है, कभी आपको कैंसर तंग करता है, कभी बूढ़े हो जाते हैं, कभी सुबह उठने को दिल नहीं करता, आलस्य हो जाता है, कभी कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाती है, दिमाग उसी में फंस जाता है। सो ये सब कुछ होता रहता है। कभी आप प्यार को पकड़ लेना चाहते हैं, पकड़ा तो जा नहीं सकता, अनवस्थित तत्व। सो ये सब कुछ दुख, सारा दिन किसी ना किसी बात के लिए अब दुख को घड़ते ही रहते हैं। यू कीप क्रिएटिंग सफरिंग विद इन योर माइंड। दुख, दौर्मनस्य, बोर बोर ही होते रहते हैं। जब दुखी भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, तो बोर होना शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये सब ऑब्स्टिकल्स गिर जाएंगे जब आपको प्रेम हो जाएगा। ऐसा प्रेम जो कि ना विरह हो, ना एक्सप्लेनेबल किया एक्सप्लेनेबल हो, बस आप जुड़ जाएंगे अपने ही बिलवेड के साथ। फिर आपका पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा मतलब बात बन गई। जिंदगी में पेट ही तो नहीं भरता। एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें पूरी सृष्टि डाल दो तब भी ये नहीं भरेगा, और ऐसे ही खाली पेट हम मर जाएंगे। मगर जिसको प्रेम हो जाता है उसका पेट भर जाता है, उसका मणिपुरी चक्र भी जागता है, अनाहत भी जागता है, विशुद्ध भी जागता है, आज्ञा भी जानता है, और सहस्रारा भी खुल जाता है। सो जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये तो साइंस है, मगर जब आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे तो उसको स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे। और स्पिरिचुअलिटी इज परमानंद। बस आनंद ही आनंद होगा, और कुछ नहीं हो। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। और आप भी तो कहे ना, ले चल, ले चल मुझे उस दुनिया में, ले चल, ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। सो ये तो जब होगा तो होगा, बट अभी तो आप साइंस तो समझ लीजिए। ये तो रास्ता है, मगर जब आप